اہل باطل کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے بنیادی عقائد آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اہل تشیعوں کا کوئی بھی مناظرہ، کوئی بھی ڈیبیٹ آپ کو توحید کے مسئلے میں بریلوی حضرات سے نہیں ملے گا، اور بریلویوں کا کوئی بھی مناظرہ آپ کو اہل تشیعوں کے ساتھ عقیدہ توحید پر نہیں ملے گا یوٹیوب پر، کیونکہ بنیادی عقائد دونوں کے سیم ہیں، ایک ہی ہیں۔ دونوں غیر اللہ سے مدد کے قائل ہیں، یعنی غیر سے مراد اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا، لفظ غیر کا مطلب ہے اللہ کے سوا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ غیر سے مراد ایسا سمجھو کہ نمرود، فرعون اور حامان ہیں۔ غیر سے مراد اللہ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں سے، یعنی کہ اللہ کے وہ پیغمبر تو ہو سکتے ہیں، نبی تو ہو سکتے ہیں، ولی تو ہو سکتے ہیں، اگر اللہ نہیں ہے تو اللہ کے سوا میں غیر خدا میں شمار ہیں، یعنی جس کو آپ رب نہ کہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ رب ہیں تو پھر غیر خدا نہیں ہے، کیونکہ غیر سے مراد اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا یعنی اللہ کے علاوہ پیغمبر ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، نیک بندے ہو سکتے ہیں، لیکن رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اس لیے غیر خدا ہیں۔ غیر خدا کا مطلب ہے اللہ کے سوا۔ غیر خدا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فرعون، قامان، حامان، نمرود اور جو ہے نا جو یہودی عیسائی ہیں، نہیں، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نہ ہو تو اسے غیر خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا۔ جس طرح شہنشاہ نقوی نے غیر خدا کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نبی غیر خدا تھوڑی ہیں۔ بھائی غیر خدا نہیں ہیں کیا؟ نعوذ باللہ، پھر خدا ہیں کیا؟ اللہ ہیں کیا؟ کہہ رہے ہیں علی غیر خدا تھوڑی ہیں۔ بھائی اگر غیر خدا نہیں ہیں تو کیا خدا ہیں؟ رب ہیں کیا؟ جو رب نہ ہو غیر خدا، یعنی اللہ کے سوا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہو سکتے، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کس نے آپ کو کہا کہ غیر خدا سے مراد جو ہے نا فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، اور آج کل کے مثلا یہودی عیسائی ہیں؟ کس نے آپ کو یہ ٹرانسلیٹ، یہ کس نے کر کے آپ کو دیا؟ یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے قرآن کے ساتھ، کہ غیر خدا سے مراد آپ لے لیں کہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ ساری مدد کر سکتے ہیں، غیر خدا سے مراد عیسائی، یہودی اور جو ہے نا مجوسی ہیں۔ یہ ٹرانسلیٹ آپ کو کس نے سمجھایا ہے؟ کس لغت سے آپ نے غیر خدا کا ٹرانسلیٹ یعنی یہود اور عیسائی نصارہ کو لیا؟ بھائی تو اہل باطل کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے بنیادی عقائد میں آپ کو بنیادی عقائد میں سے کوئی بھی ایسا سمجھو کسی بھی مسئلے پر اختلاف نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیے، آپ فلاں یہ ہے وہ ہے، آپ کے یہاں شرک بڑھ رہا ہے، آپ کے یہاں کفر بڑھ رہا ہے، آپ کے لوگ شرک کرتے ہیں، کفر ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا جی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کے لوگ غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے لوگ غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جی مثلاً کیا کہتے ہیں؟ کون ہے غیر خدا جس سے ہمارے لوگ مدد مانگتے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کے لوگ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ علی غیر خدا ہے؟ غیر خدا، مولا نبی، مولا علی غیر خدا، یعنی خدا سے ہٹ کر ہیں۔ میں نبی مکرم کو اور مولا کائنات کو اللہ کے ساتھ عرض میں نہیں مانتا، طول میں مانتا ہوں۔ اگر اللہ، رسول اور مولا کو برابر رکھیں گے یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ، رسول اللہ، علی، تو یہ عین توحید ہے، عین ولایت ہے، عین اسلام ہے۔ ہم اہل بیت کو اللہ کے برابر نہیں رکھتے، اللہ کے برابر ہے نہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو غالی ہو، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نصیری ہو۔ شیعہ میں اور نصیری میں فرق ہے، تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو۔ شیعہ میں اور نصیری میں فرق ہے، شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے، نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے۔ مولا کو مولا کے مطابق ماننا یہ تشیع ہے۔ کہنے لگے جی غیر خدا سے مدد، کہاں غیر خدا سے مدد ہے؟ کہا جی آپ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہے؟ جی اللہ اکبر، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔
नमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद, यजीद, मरवान से मदद मांगना गैर खुदा से मदद मांगना है जी। मगर मूसा, ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हमारे नबी मौला अली, मौला हुसैन, ये बाबुल्लाह है, गैर खुदा नहीं है। कि भाई हमारे एक साहब जबरदस्ती, आपको पता है हमारे नौजवान जज्बाती होते हैं, कहेंगे मौलाना ये बार बार मुझे कहता है या अली मदद कहना बिदअत है, तो मैं आपसे मिलवाने ले आया। तो मैंने कहा बिदअतियों को क्यों ले आया भाई, तवज्जो। तो कहने लगा या अली मदद कहना बिदअत है। मैंने कहा बेटा आप बहस गलत कर रहे हैं। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा या अली मदद बहस ही ना करो, कहो या मोहम्मद मदद। तो कहने लगा उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा दूसरे मुसलमान भी साथ खड़े होंगे, तवज्जो। तो मैंने उस कलमा गो से कहा, कलमा गोई कहूंगा, मैंने कहा भाई या मोहम्मद मदद जायज है? कहने लगा नहीं। दिनों से ना मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर ना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला, आप ना तकरीबन को 4-5 साल पहले गए थे बगदाद शरीफ में ना, तो वैसे तो वो जाते रहते हैं, उन पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा करम है वो मंजूर नजर जो हुए, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, वो गए ना तो वहां पर पूरा काफिला था, तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तसरीह फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तसरीह फरमाई, सैयदी आला हजरत साहब ने तसरीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तसरीह फरमाई, और ये तसरीह मौजूद है। और वो क्या है? वो ये इस बात की वजाहत और तसरीह फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह वाले से अल्लाह का बंदा समझ के और ये समझ के कि अल्लाह इन्हें देता है, ये हमें देते हैं, ये समझ के मांगा जाए तो जायज है, कोई शिर्क नहीं है। जब इस बात की तसरीह मौजूद है तो फिर शिर्क के फतवे क्यों, फिर क्यों लोगों के दिमाग को खराब किया जाता है? क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है? कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं, और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों में आज भी वो हुजरा बना हुआ है जहां 40 दिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे और आपने झोली फैलाई और मेरे दाता ने खैरात डाली थी। भाई अल्लाह इनको अता करता है, ये देते हैं। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? हाजी हबीब साहब पे बड़ा फतवा तुम्हें याद आ गया, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, ये मेरे मसलक पर अटैक किया गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती अटैक करने वालों? ये कौन सी बात है यार? गिरामी कदर हज़रात, और ये बात आप मिशकात की शरह अशियातुल लमात उठाएं, उसमें मौजूद है। समझ में नहीं आता, सच्चो गौस से आजम सनम पीर आहे, सच्चा गौस पाक समझ में नहीं आता, या औलिया किराम। तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो इसमें कोई हरज नहीं है कि ये हकीकत में इनडायरेक्ट ही है। आप बताइए मौत कौन देता है? आप बोलेगा अल्लाह। अल्लाह के पास जाता है, उनकी खिदमत में दरखास्त करता है तो इसकी बिल्कुल गुंजाइश निकल सकती है। बाकी रही ये कि दूर से पुकारने की क्या शरई हैसियत है कि अगर कोई अल्लाह के वली बहुत दूर है तो उन्हें दूर से पुकारना, इसमें दो नजरियात हैं, एक सही है एक गलत है। अगर ये नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के अता के बगैर एक शख्स हजारों मील दूर से हमारी आवाज़ को सुन लेगा तो इसके कुफ्र और शिरक होने में कोई शुबा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। और अगर कोई ये अकीदा रखता है कि वो बशरी तकाज़े के तहत इतनी दूर से यकीनन नहीं सुन सकते हैं, अगर बशरी तकाज़े को देखें या बशरियत के ऊपर निगाह रखी जाए, लेकिन हमारा रब्बे करीम बड़ी कुदरत कामिला वाला है, अगर हम किसी को दूर से पुकारते हैं और अकीदा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देगा, तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत अजीमा पर भरोसा रखकर अगर कोई इस तरह पुकारता है तो इसमें फिर कुफ्र शिरक का कोई तसव्वुर नहीं है। अवाम नास के साथ हमेशा की तरह बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अहले बातिल ने हमेशा अवाम के अकायद के साथ खेला है। शहनशाह नकवी
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जवाब देते हुए कहते हैं, हालांकि इंजीनियर ने जिस तरह अहले बातिल की मंजी ठोकी है, शायद मैं कहता हूँ आज के डेट में किसी ने इस तरह अहले बातिल के साथ ना किया हो। एक बंदा जो ना हाफिज़ है, ना आलिम है, ना कारी है, ना किसी मदरसे से फ़ारिग है, लेकिन अहले बातिल की मंजी उसने इस तरह ठोकी है, शायद सदियों से आज तक, यानी आज के डेट तक किसी ने अहले बातिल के बुनियादी अकायद को इस तरह किसी ने रद्द नहीं किया होगा। अहले तशय्युअ का बुनियादी अकायद अगर आपने या अली मदद का जवाब नहीं दिया तो आप अहले तशय्युअ से खारिज हैं। अहले तशय्युअ का बुनियादी अकायद अगर आपने, क्योंकि उस अकीदे को ऐनुल इबादत कहते हैं, कुरान से साबित करते हैं। जंजीर जनी यानी मातम करना, अगर आप मातम नहीं करते, अगर आप जंजीर जनी नहीं करते, अगर आप घर पर अलम नहीं लगाते, आप अहले तशय्युअ नहीं हैं, अहले तशय्युअ से खारिज हैं। अहले तशय्युअ का बुनियादी अकायद जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने रद्द किए, शायद मैं कहता हूँ आज तक किसी आलिम दीन ने रद्द नहीं किए। इसी तरह खिलाफत वाला मसला, खिलाफत वाले मसले में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जिस तरह उनके अकायद को रद्द किया, शायद किसी आलिम दीन ने रद्द ना किया हो। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को रिप्लाई देते हुए शहनशाह नकवी कहते हैं कि नबी गैर खुदा थोड़ी हैं, अली गैर खुदा थोड़ी हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब ने उनके बुनियादी अकायद को रद्द किया था, शिरकी अकायद को। तो जवाब देते हुए कहते हैं कि नबी गैर खुदा थोड़ी हैं। भाई अगर गैर खुदा नहीं हैं, क्या खुदा हैं? क्या अल्लाह हैं? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह हैं या मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह हैं? गैर से मुराद है अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा यानी अगर इसका ट्रांसलेट ये भी किया जाए गैर खुदा, वो भी दुरुस्त है। गैर का मतलब है जो हस्ती, जो शख्स अल्लाह ना हो वो गैर खुदा में शुमार है, जो रब ना हो वो अल्लाह के सिवा यानी अल्लाह के सिवा में शुमार है, अल्लाह गैरुल्लाह में शामिल है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आपको किसने ये ट्रांसलेट करके दिया कि गैर खुदा से मुराद ईसाई हैं, यहूदी हैं, फ़िरौन है, हामान है, नमरूद है? किसने आपको ट्रांसलेट करके दिया? किस डिक्शनरी से आपने ये ट्रांसलेट ली है कि गैर खुदा से मुराद फ़िरौन, हामान, कामान, कारून है? ये तो हरगिज़ नहीं है। ये तो ऐसा समझो कि गलत इस्तदलाल है। गैर खुदा से मुराद जो हस्ती, नबी तो हो सकता है, पैगंबर तो हो सकता है, अल्लाह का महबूब हो सकता है, अल्लाह का वली हो सकता है, अल्लाह का दोस्त हो सकता है, अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है। अगर अल्लाह नहीं है तो वो गैर खुदा है, यानी अल्लाह के सिवा। इसी तरह अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए जिनका अगर आम लफ्ज़ों में ट्रांसलेट किया जाए तो वो भी गैर खुदा में शुमार होते हैं। जिन्होंने ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब बनाया था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब बनाया है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा। अल्लाह यानी वही अल्फाज आम लफ्ज़ों में गैरुल्लाह, यानी आपने एक गैर खुदा को खुदा बनाया, हालांकि वो खुदा नहीं है, गैर खुदा है। आपने एक गैर खुदा को, एक नबी को आपने खुदा बना लिया। वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने मिन दूनिल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये कुरान के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। ये अवाम उन्नास के साथ भी जुल्म और ज़्यादती है। खुदारा अवाम के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। अवाम उन्नास को कुरान और हदीस से जोड़ें, ना कि तोड़ें। आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देना है, आपने अहलुल बैत को जवाब देना है।